اور اب آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواقئی میں آپریشن ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ علاقے میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر آپریشن کیا گیا، جبکہ فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواقئی میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 4 خوارج مارے گئے۔ علاقے میں خوارج کی موجودگی کے اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ صدر مسلم لیگ نواز شریف نے PIA خریدنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ مریم نے مجھ سے مشورہ کیا، PIA کو لے لیں، برانڈ نیو ایئر لائن اسٹیبلش کریں۔ مریم نے کہا کہ برانڈ نیو ایئر لائن پاکستان کو دے کر ایئر پنجاب کا نام دیتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا کہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے PIA کو برباد کیا۔ وہ شخص جو بانی PTI کے دور میں وزیر تھا چھپ کر بیٹھا ہے۔ اس شخص نے کہا تھا PIA پائلٹس کے پاس لائسنس جعلی ہے۔ کیا یہ بات عوامی سطح پر کہنے والی تھی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور کا 9 نومبر کو سوابی انٹرچینج پر جمع ہونے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ 9 نومبر کو سوابی میں بڑا اجتماع کریں گے، لاحمل دیا جائے گا، ہم اپنی فائنل کال دیں گے، اب اپنے حقوق لے کر ہی جائیں گے، ہم نے ایک پلان بنایا ہے، اس پر کام شروع ہے۔ انہوں نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید یہ بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی میں کوئی کردار ادا کروں گا تو خود بتاؤں گا۔ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں، یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک صوبے پر چڑھ دوڑ کر حساب دینا پڑے گا۔ جب تک آئین توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی تو آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ہم 9 تاریخ کو سوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائبل دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی۔ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے کیا؟ میں نے بتایا کسی کو؟ اور جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کوئی بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین، ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس؟ یہ وہ سوال ہے جس کا انتظار سبھی کو ہے، مگر دنیا کی سپر پاور کے اگلے صدر کا انتخاب 240 ملین امریکی ووٹرز 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اپنے ووٹ سے کریں گے۔ ناظرین، امریکہ میں صدر کا انتخاب ایک پیچیدہ الیکٹرل کالج کے ذریعے ہوتا ہے۔ الیکٹرل کالج میں ہر ریاست کے ووٹ اس کی آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں۔ الیکٹرل کالج مجموعی طور پر 538 الیکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان الیکٹرز میں بالترتیب 438 اراکین ایوانی نمائندگان جبکہ 100 ممبران امریکی سینٹ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جو بعد ازاں اپنا ووٹ صدارتی امیدوار کو دیتے ہیں۔ فتح کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی صدارتی امیدوار 270 الیکٹرل ووٹ حاصل نہ کر سکے تو صدر کا انتخاب ایوان نمائندگان کے 438 اراکین کریں گے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے بیشتر ہر مرتبہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیتی رہی ہیں، مگر کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر انتخابی مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو ملک کے صدر بننے کے خواہشمند امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں، اور انہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نواڈا، شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا اور وسکنسن، یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جن پر کملا ہیرس اور ٹرمپ دونوں کی نظریں ہیں۔ یہ جادوئی ریاستیں کس کا پلڑا بھاری کریں گی، یہ تو 5 نومبر کو ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی۔ اٹلانٹا کے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو رد کر گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاست اور حکومت نہیں آتی۔ کملا ہیرس کا اٹلانٹا میں ریلی سے خطاب، ڈونلڈ ٹرمپ کی سابق حکومت نے نقصان پہنچایا، اسے آزادی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی، اٹلانٹا کے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو رد کریں۔
डोनाल्ड ट्रंप को सियासत और हुकूमत नहीं आती। कमला हैरिस का अटलांटा में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की साबिक हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया, इससे आज़ादी चाहिए। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई है। रियासत कैलिफोर्निया में भी इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। अमेरिकी इंतखाबात में पहली मरतबा शहरी मुल्की इशूज़ की बजाय बैनुल-अक़वामी इशूज़ की बुनियाद पर वोट देने को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका में मुकीम में पाकिस्तानियों का इस बारे में क्या कहना है, बता रहे हैं कैलिफोर्निया में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अजमत गिल। जी अजमत, इस हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी कैलिफोर्निया से जो तल्लक रखती है वो अहम किरदार अदा कर रही है। एक्टिव लोग हैं, सियासत में एक्टिव हैं और यहाँ पर माशरे में बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये लोग किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस दफ़ा तो मेरा वोट ट्रंप के लिए है और उसकी वजूहात जो कुछ ऐसी हैं कि एक तो बैनुल-अक़वामी सियासत पे उनका ज़्यादा रुझान है, उस तरफ उनका ज़्यादा तवज्जो है और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से हमें बड़ी उम्मीद है कि ट्रंप का एक पॉजिटिव रोल होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। जी आप इस हवाले से क्या कहते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ना ट्रंप को सपोर्ट कर रहा हूँ ना कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा ग्रीन पार्टी को, जो कि हमारी बैनुल-अक़वामी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि गज़ा और पाकिस्तान दोनों के हक़ में होगी। ऑल्दो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ग्रीन पार्टी को सपोर्ट करूँगा। जी ये इंतखाबात पहली दफ़ा इस सूरत हाल में जा रहे हैं कि कभी भी इंतखाबात में हमेशा मुल्की इश्यूज़ जो हैं वही अहमियत इख्तियार करते हैं। ये पहली मरतबा है कि ट्रंप जो हैं वो गैर मुल्की इश्यूज़ को भी इन इंतखाबात का हिस्सा बना रहे हैं ताकि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जा सकें। जी नाज़रीन, अमेरिका में इब्तदाई वोटिंग आज ख़त्म हो गई और वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले, अपना वोट कास्ट किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यूसुफ चौधरी वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मेयर की उम्मीदवार आलिया ग्लेसन के साथ ही मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिए। भर में आज अर्ली वोटिंग का आखिरी दिन है। आज शाम 7 बजे तक तमाम रियासतों में अर्ली वोटिंग का अख्ताम होगा और 5 नवंबर को अमरीकी जो है अपनी हक राय दर इस्तेमाल करते हुए 5 नवंबर को अपना सदारती उम्मीदवार चुनेंगे। आज मैं मौजूद हूँ एक पोलिंग स्टेशन पे अलेक्जेंड्रिया के, जहां हमने देखा, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में अर्ली वोटिंग के लिए लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है अलेक्जेंड्रिया मेयर के लिए कॉन्टेस्ट करने वाली है आलिया गैस्किन। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह देखती हैं इन इलेक्शंस को और ख़ास तौर पे अर्ली वोटिंग का जो टर्न आउट है और उस पर इनका क्या कहना है। थैंक यू आलिया। We are looking at this early voting elections. I mean, we are looking at the large number of people. They are coming out for voting. So how do you see what is so special for this year election and what is so special for this race? Well, thank you for the question. It's been amazing to see the energy. I mean, we've had lines all day today and every day this week. I think what is happening is people know that so many issues are on the ballot, from our housing to our transportation to our healthcare, and they don't want to sit this one out. They want their voice to be heard and have an opportunity to shape the next set of decisions for our country. Thank you, Alia. जी, जैसा कि आपने सुना कि आलिया का भी कहना ये है कि जो मुआशी हालात हैं और जो लोगों के मसाइल हैं, इस इलेक्शन में तमाम पार्टीज की जानिब से उन मसाइल पे फोकस किया जा रहा है और अगले 5 नवंबर को देखना ये है कि व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा। जी अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग में 60 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। अमेरिकी तारीख में पहली बार सदारती दौड़ में शामिल सियाफाम डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक डोनाल्ड ट्रंप भी और मंशूर और नारे पर इंतखाब लड़ रहे हैं। आइए आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात बस चंद घंटों की दूरी पर हैं। महीनों पर फैली सदारती मुहिम इख्तिताम पजीर होने को है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस फाइटिंग फॉर द पीपल डिलीवरिंग फॉर अमेरिका और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इंतखाबी नारे से वोटरों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। रवां सदारती इंतखाबात में गाजा जंग, मुआशी मसाइल, सोशल सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली, गन वायलेंस और गैर कानूनी पनाहगुजीरों
तीनों जैसे अहम मौज़ूआत सदारती उम्मीदवारों की तकरीरों का हिस्सा रहे। अगर दोनों सदारती उम्मीदवारों का मवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जारहाना नजर आता है, जिसमें मुआशी बेहतरी, तिजारत, पनागुज़ीनों की अमरीका आमद पर सख्ती, अस्करी ताकत को बढ़ाना, नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना, चीनी जासूसी को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाए मौत देना शामिल है। कामला हैरिस का जोर खवातीन के हुकूक से अफाम अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाना, माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो देना, तालीम, गन वायलेंस या असलहे के तशद्दुद की रोकथाम जैसे मसाइल के हल पर है। जब इसराइल की गाजा पर जारहियत की बात आती है तो कामला हैरिस दो रियासी हल और गाजा में सीज फायर की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। उनके नजदीक गाजा में हालात तबाहकुन हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के मुकम्मल हामी हैं। ताहम उन्होंने इसराइल पर जल्द गाजा पर जंग बंद करने पर जोर भी दिया है। कामला हैरिस इसकाते हमल की भी हामी है। कामला हैरिस इल्जाम लगाती हैं कि ट्रंप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर फवाइद में कमी लाएंगे और 50 स्टेट पर मुश्तमिल बैकडोर बैन का नफाज करेंगे। ताहम अपने मंशूर एजेंडा 47 में ट्रंप का दावा है कि वो अमरीकी मिलिट्री में बाएं बाजू के सिंफी प्रोग्राम्स में कमी लाएंगे। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी में कमी के हवाले से भी तरदीद की है। ताहम उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर ये इल्जाम भी आयद किया है कि वो खरबों डॉलर्स और विफाकी बजट को उन प्रोग्राम्स की मद में जाया करती हैं। कामला हैरिस बजाते खुद एक पनागज़ीन घराने से ताल्लुक रखती हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम में उन्होंने गैर कानूनी माइग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है। उनका कहना है कि वो क्रॉस पार्टी बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर सदर बनने के बाद दस्तखत करेंगी। इस बिल के तहत पनाह के केसेस पर जल्द फैसला, बॉर्डर वॉल पर काम के लिए फंड्स, पनागुज़ीनों को मुल्क बदर करने का जायद इख्तियार शामिल है। तहाँ मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार के खहाँ ट्रंप पनागुज़ीनों की अमरीका आमद के नहायत खिलाफ है। उनका मानना है कि ये पनागुज़ीन अमरीकी टैक्स देने वालों पर एक बोझ है, जिसके बायस सालाना तकरीबन 140 अरब डॉलर जाया होते हैं। अमरीका के समाजी मसाइल में गन वायलेंस खासा अहम इशू है। इस हवाले से कामला हैरिस को अवाम में खासी पजीराई भी मिल रही है। कामला हैरिस ने नायब सदर की हैसियत जोर दिया कि वो 750 मिलियन डॉलर के विफाकी फंड्स को क्राइसिस इंटरवेंशन में इस्तेमाल करें। उनकी वेबसाइट में उनकी इस कामयाबी का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल कैलिफोर्निया को 12,000 गैर कानूनी गन से पाक किया था। कामला हैरिस माहौलियाती मसाइल पर भी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं। बतौर नायब सदर उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के लिए फैसला कुन वोट डाला, जिससे माहौलियाती तब्दीली से मुंसलिक कानून साजी अमल में आई। इस एक्ट के तहत आम अमरीकियों के घरों में तवानाई से जुड़े अखराजात में कमी और तवानाई के शुबे में मुलाजमतें पैदा हुई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की ख्वाहिश है कि वो दोबारा अमरीका को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकालें और बाइडेन इंतजामिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अखराज और दीगर पॉलिसीज को ओहदा संभालने के पहले दिन ही वापस लें। कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप का नारा और मंशूर कितने अमरीकी वोटर्स को मुतासिर कर सका, ये फैसला आइंदा चंद घंटों में हो जाएगा। ताज़ा तरीन सर्वे की बात करें तो 538 के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1.3% की बरतरी हासिल है। अब देखना यह है कि कामला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मकबूलियत के बायस अमरीका की पहली सियाफाम सदर मुंतखब होकर तारीख रकम करती है या डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदारत की कुर्सी पर बैठते हैं। आलमी मंजरनामे से खबर है कि तल अवीव में इसराइलियों का मुजाहरा हमास से कैदियों के तबादले का मुतालबा किया गया। नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। नेतन्याहू का दौरे हुकूमत नाकाम और तबाहकुन है। मुजाहरीन की जानिब से कहा गया तल अवीव में इसराइलियों का मुजाहरा हमास से कैदियों के तबादले का मुतालबा किया गया। अमेरिका की ईरान की धमकी, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। अमेरिका इसराइल के लिए हर तरह की कुर्बानी देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। अमेरिका की ईरान को धमकी, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। अमेरिका इसराइल के लिए हर तरह की कुर्बानी देगा। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही।